वेलकम टू प्रदीप्स कंप्यूटर क्लासेस। प्रदीप के कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास ऑन द कोर्स बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ computers. So basically I just want to say something like, before starting what all things we will consider. First thing is I will be talking in two languages. One is English, another is Hindi. Because sometime some student might be good in English, understanding the English clearly, but sometime might be possible that कुछ बच्चे जो है सो हिंदी में समझ पाएंगे, इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे। हम बात करेंगे दोनों लैंग्वेज में, बट जब बात आएगी कंप्यूटर को समझने की, तो दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, because computer will always work in the English language. There is a Hindi interface also, but in the day life situation, if you'll go in the further in the future, you will not get Hindi language for the computer. Okay, so that is why you just try to understand the computer perspective in English, but when I will explain, I will take many of the real life example to relate to the computer, so that time I will let you understand in English. So first thing is this, I will talk in both the languages, so you do not have to worry. Second thing is, what all things I will be giving you in this course. There is multiple content are there. The course name just basic computer, but here only computer basics you will not going to understand. Here it will be like basic to the intermediate level, the medium level of this. So fine, I will discuss on this point, but before that, I just want to say, you do not have to worry about the notes is there. You do not have to worry. I will be sending the notes over your email, whatever the email you have given to me, and daily by daily you can go to the notes, you can make a note on your copy, and you can understand it. But in this video, in this session, you just try to focus on what I am saying here, बिकॉज कंप्यूटर ऐसा चीज़ है जिसमें आपको जब भी किसी से पूछेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे जिसको थोड़ा सा एक कंप्यूटर खरीद लिया है या कंप्यूटर को बस छू लिया है, आप उससे पूछेंगे कंप्यूटर आता है, तो बोलेगा हाँ कंप्यूटर आता है. बट लिटरली इफ़ यू try to understand, if you'll go this video, if you'll go with this course, you will come to know that computer is not so small. Computer knowledge is just like, it is not like just using the PowerPoint, Word, or you have just opened the pen and you got to know that what is computer. It is not like that. Computer knowing is a very vast thing, so we'll discuss on that. So better, whenever you are going to join in any school, you have to understand the school teacher and all, who is the teacher of the school, who is going to teach you. So if you understand him perfectly, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. अगर आप अपने टीचर को समझ पाएंगे कि ये टीचर कैसे हैं, किस तरह से बात करते हैं, क्या उनको हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, टीचर में किस तरह का माइंडसेट है, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने फर्स्ट टू लेट यू नो योर टीचर फर्स्ट एंड देन यू गो टू द स्टडी. सो just I will tell something about myself first, and then we'll start on the basic of computers. So regarding me, myself Pradeep Kumar Pankaj, I have a qualification of Bachelor of Technology in Information Science, Information Technology. I have a vast of 8 years of experience in the software development area, and I have worked with different multinational companies like Infosys, SCL, and I'm working with one of the human data science company, IQVIA IMS Health. So basically this is just to let you know that I am from the software background, I am from the computer background. So the way I will be going to teach you and the way other teacher will be going to teach you who is not from this background will be different, and you can find it out here. So fine, this is about my what is my introduction I have given to you. But the thing is, you can ask that you are a software engineer, so why you are coming to the teaching environment? Is it for earning or is it for learning, something like that? No, my aim is not to give you that, my aim is not like आप लोग से हम कुछ पैसा ले या कुछ इस तरह का बिजनेस करे. मेरा ये एम नहीं है. मेरा एम है क्योंकि
हमने अपने विलेज में, अपने गांव लेवल पे कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखे हैं। कंप्यूटर, सभी लोग बोलते हैं मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं भी उधर से ही आता हूं तो मुझे पता है कि लोग कंप्यूटर पढ़ाते नहीं है। कंप्यूटर में बस आपके बच्चों को सिस्टम ऑन करना ऑफ करना सिखाएंगे, कुछ लिखा देंगे और आपका कंप्यूटर क्लास हो गया। दिस ऑल थिंग्स इज़ नॉट अ कंप्यूटर। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू मेक यू क्लियर. So fine, so that is why just you focus on this course and always try to watch the video from start to the end. तीसरा पॉइंट है कि आप लोग जब लिखते हैं कॉपी में नोट्स, तो हम जब अभी बोलेंगे हम आपको समय देंगे, जहाँ पे आपको लिखने का होगा मैं बोलूँगा आपको राइट डाउन, देन यू कैन राइट डाउन ऑन अवर नोट्स, अदरवाइज यू जस्ट लिसन मी, अंडरस्टैंड मी, फाइन. सो सबसे पहला चीज़ है, अगर हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते पढ़ना तो पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले होता है उसका परिचय. आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से मैथमेटिक्स नहीं हो जाता है. मैथमेटिक्स का बेसिक समझना होता है, उसका फंडामेंटल समझना होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट. सो इन द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, what do you mean by computer? What is computer? The question is, what is computer? If you'll ask to if you'll ask this question to anybody, if you'll ask this question to like any of the student, whether your colleagues, whether your some of the person who is working on the computer and who do not have any such degree and all, if you'll ask, he will say a very renowned thing is there. बहुत प्रचलित डेफिनेशन है कंप्यूटर का. Computer is an electronic device. If you ask to anybody, if you ask to your colleague who is saying that I am good in computer, if you ask to him like what is the definition of computer, what is computer, he will say computer is an electronic device. If you go to any books, the first statement is computer is an electronic device. So basically I will also going to say the same thing. मैं भी यही बोल रहा हूँ कि computer is an electronic device. सो राइट डाउन द नोट्स. पहला पॉइंट लिखिए अपने कॉपी में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और उसमें एक पॉइंट लगा के स्टार मार्क, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. बस इतना ही लिखना है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ठीक, अब समझना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और डिवाइस क्या होता है. मुझे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे तो फिर आप डेफिनेशन को याद कर लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको वास्ट लेवल समझ नहीं आएगा. तो डिवाइस मतलब क्या होता है. आप लोग के हाथ में अभी मोबाइल होगा, आप लोगों के घर में टेलीविज़न होगा, आपके घर में फ्रिज होगा. वाई यू हैव बॉट ऑल दिस थिंग्स? आपने ये सभी चीज़ क्यों खरीदा? इसीलिए क्योंकि इन सभी चीज़ों का यूज करके आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आसानी होती है. These are the things which will make your life easier, right? So if we'll talk about mobile, you have taken your mobile and what you are doing something, you are in the home and you are calling to everybody, you are talking to everybody. If you are in the home and you are watching the videos, you are listening the song and all, many things. So do you think that is it like they have made your life easier? क्या आपने आपका लाइफ आसान कर लिया इस मोबाइल खरीद के? यस. अगर आप बात करते हैं टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न में क्या करता है? टेलीविज़न में हम लोग कुछ नहीं जानते, अभी इंटरनली कुछ नहीं जानते हैं. मैंने खरीद के लाया, एक सेटअप बॉक्स वाले आए, लगा दिए कनेक्शंस, और आप यहाँ पे रिमोट से आप टीवी देखना शुरू किए, चैनल चेंज किए, आपको जिस भी तरह का न्यूज़ चाहिए, मूवी चाहिए, सब दिख जा रहा है. These all are the things. If you talk about freeze, then what freeze is doing? In the freeze, you are keeping the water. It is coming, as a cold after half an hour, whatever the time is it. कुछ देर के बाद वो ठंडा होकर निकल जाता है. अगर आप सभी चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ये सभी चीज़ जो है आपके लाइफ को आसान कर दिया. घर में बैठे बैठे आपका लाइफ आसान कर दिया. So the thing which is going to make the life easier is called
So if you'll talk from the perspective of computer, then what is the meaning of device in the computer? Actually, again, computer device also means, like, it is going to make your life easier, right? So I will give you the definition of device in the perspective of computer, but just let you understand. आप बस समझिए इतना कि डिवाइस एक ऐसा चीज़ है, डिवाइस का हिंदी मीनिंग होता है यंत्र। यंत्र एक ऐसा चीज़ है, डिवाइस एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका लाइफ इजी हो जाता है, राइट? अनदर थिंग व्हाट आई सेड इज इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज आई सेड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है? हम लोग, जो आप लोग अगर 10th पास करके हैं, या 10th में हैं, या 9th में हैं, या डिफरेंट एरियाज़ में हैं, तो आप लोग कभी ना कभी एक, अभी जब से आप 10th पास किए होंगे तो आप देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे। वहाँ पे आप लोगों ने रेसिस्टेंस पढ़ा है, रेसिस्टर पढ़ा है, कंडक्टर पढ़ा है। दीज ऑल थिंग्स यू हैव स्टडीड एज ए डेफिनेशन and you have solved some numericals. But if you talk from the real life perspective, हम लोग इस सभी चीज़ों को यूज करते हैं तो एक हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं। आप लोगों ने सब देखा होगा चिप्स, हम लोग कहते हैं कि चिप लगा हुआ है, इसमें एक छोटा सा मदर बोर्ड लगा हुआ आता है, आप निकालेंगे इतना ग्रीन कलर का रहता है, ढेर सारे कनेक्शंस होते हैं। These all connections are made up of electronics devices, electronics instruments actually. So अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब हुआ ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग, जिस डिवाइस को बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज़ किए हैं, ऐसा डिवाइस जिसको बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज़ किए हैं, उससे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। So let us understand it from the computer perspective, because I said computer is an electronic device. So what is the meaning of device in terms of computer? Write down meaning of device. A device is a unit of physical hardware, or device is a unit of physical hardware or equipment that provides one or more computing functions within a computer system. यहाँ तक हमने क्या बोला कि एक कंप्यूटर डिवाइस, हम लोग डिवाइस का मीनिंग किस में देख रहे हैं? कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर डिवाइस का मतलब होता है ऐसा फिजिकल हार्डवेयर। हम हार्डवेयर की बात करेंगे अब अच्छे से, बहुत ज़्यादा करेंगे। अभी बस आप लिखिए कि एक ऐसा हार्डवेयर है, ऐसा इक्विपमेंट है जो हमको कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को चलाने में हेल्प करता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर, एक्सेप्ट आउटपुट और बोथ। Okay, so if you talk from some device perspective, then in the computer some devices are mouse, speaker, printer and microphones. There are many different things are there, different devices that is used in a computer. But as of now, just write this definition and do not worry about what is hardware, what is this physical hardware, what is the meaning of mouse, speakers, printer. I will say everything in detail, what type of mouse is existing, what is the speaker meaning, printer meaning, microphone meaning, everything I will be explaining. Do not have to worry. Okay, so next is meaning of computer device, electronic devices. So you got the meaning of device. So you write down now, आप लोग लिखिए पहला नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, अ डिवाइस दैट accomplishes, or device that accomplishes, ACCOMPLISHES, accomplishes its purpose electronically. A device that accomplishes its purpose electronically, वही चीज़ हम आपको बताए थे, ऐसा डिवाइस जो
अपना काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करता है, विच एकम्प्लिश मतलब अपना काम फिनिश कर रहा है, अपना काम करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ कर रहा है. सो अ डिवाइस दैट accomplish इट्स पर्पस इलेक्ट्रॉनिकली is called electronic device, right? So there is if you take a notes, you have a little bit bigger definition, you just keep it in mind, and once you will get a notes you can write it down. Okay, so अभी तक हम लोग क्या समझे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब, डिवाइस का मतलब और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब आपको बताए. अभी तक के चीज़ क्वेश्चंस में, अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस बनेगा दिमाग में, आप अपने नोट्स पे लिखे रहिएगा और मुझे आप भेजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट इज है हम लोग के पास कंप्यूटर कहाँ से आया है, ये वर्ड कहाँ से आया. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टार मार के, स्टार. कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, computer is derived, D-E-R-I-V-E-D, derived from the word compute, C-O-M-P-U-T-E, compute, which means calculate. Computer is derived from the word compute, which means calculate. ये भी डेफिनेशन आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे, ये भी एक बुक में, बहुत सारे बुक में होते हैं ये डेफिनेशन. तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया, कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट. अब इसका लिटरल मीनिंग समझिए क्या होता है. कैलकुलेट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, राइट. कैलकुलेटर में क्या करते हैं हम लोग, मेरे पास कुछ आया, प्लस माइनस करना है, कुछ करना है, गुना करना है, भाग करना है, तो हम लोग 2 + 3 किए 5 हो गया, 5 + 7 किए तो कुछ और आ गया, इस 5 - 2 किए कुछ और आ गया. तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटर एक ऐसा चीज़ है, कैलकुलेटर के अंदर क्या हो रहा है वो आप जब धीरे धीरे समझिएगा तो वहाँ भी प्रोग्रामिंग होगा, जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे. क्योंकि अभी आप सोच सकते हैं ना कि मैंने 2 + 3 लिखा तो कैलकुलेटर अपने आप हमको 5 कैसे दे दिया. कुछ जादू नहीं होता यहाँ पे, अंदर में जो चीज़ होता है वो प्रोग्रामिंग होता है. वो चीज़ आपको नहीं समझना है अभी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगर एडवांस क्लास जाएंगे, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे. तो अभी हमको ये समझना है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति, कंप्यूटर का उत्पत्ति जो है वो कंप्यूट से हुआ है, राइट. नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट से पहले हम इस पर थोड़ा और डिटेल करते हैं. जो कंप्यूट और कंप्यूटर क्या हुआ, देखिए आपके घर में अभी एक कैलकुलेटर होगा, आप लोग जब कुछ कैलकुलेशंस करते होंगे तो छोटा वाला कैलकुलेटर होगा, या आप लोग दुकान पे जाएंगे तो आप लोग के पास कैलकुलेटर देखे होंगे, और थोड़ा सा टेढ़ा हल्का टिल्ट करके एक कैलकुलेटर रहता है, जिसमें आपके घर में या बच्चा लोग छोटे से कैलकुलेटर पे काम करते हैं. तो इस कैलकुलेटर में आप क्या कर पाते हैं, छोटे वाले कैलकुलेटर में बस जोड़ घटाव गुना भाग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दिस ऑल थिंग्स यू आर एबल टू डू, राइट. But if I will say in that particular calculator, are you able to find the sin theta value, sin 36 value, are you able to find in that small calculator? No. If I will say what is my name, is that calculator will be able to say? No. तो आपका जो छोटा कैलकुलेटर था वो कुछ छोटे पर्पस के लिए बना. अगर आप धीरे से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मतलब अगर आप कभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे मान लीजिए, या आप कभी कुछ ऐसा एडवांस लेवल काम करना चाह रहे हैं कैलकुलेटर के साथ, तो एक नया कैलकुलेटर आता है जिसका नाम होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर. कैलकुलेटर अभी 2 लेवल पे बात की, एक छोटा कैलकुलेटर जिससे छोटा मोटा बिजनेस हम लोग दुकान में भी कैलकुलेट करते हैं, या कोई कितने सैलरी आया गया कि हम लोग जोड़ते हैं, कितना इस महीने खर्च हुआ, सब जोड़ते हैं छोटे से कैलकुलेटर पे. बट नेक्स्ट लेवल इज साइंटिफिक कैलकुलेटर. व्हाट इज दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर? साइंटिफिक कैलकुलेटर एक ऐसा चीज होता है जिसमें हम लोग जितने भी आप अभी जितना चीज़ यहाँ नहीं कर पाते हैं, आप बोले ना साइन 2 डिग्री का वैल्यू मुझे निकालना है,
साइन 90 डिग्री का वैल्यू सभी लोग 1 बोल देंगे क्योंकि आप लोगों को प्रोसेस पता है। बट अगर हम बोलेंगे साइन 2 डिग्री का वैल्यू निकालिए, आप निकाल पाएंगे? आपने कैलकुलेटर का हेल्प लिया, और जब आप कैलकुलेटर का हेल्प लीजिएगा तो आपको छोटा वाला कैलकुलेटर में तो कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि नेक्स्ट लेवल, उसका एक एडवांस लेवल आया जिस लेवल का नाम है साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर खरीदते हैं तो फिर उसमें आप, और उसको यूज़ करने का तरीका होना चाहिए, सीखना पड़ता है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप वहाँ पे साइन 3 डिग्री के वैल्यू निकाल पाएंगे, साइन 2 डिग्री के वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप धीरे धीरे क्या किए कि एक छोटा सा कंप्यूटर से एक बड़ा सा कंप्यूटर पे आए। लेकिन वो भी बड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आपको, आप अगर बोलेंगे व्हाट इज़ माय नेम, एंड आपको अगर कुछ ज़्यादा डिटेल लॉजिकल थिंग्स जानना है, वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम लोग कुछ नया नया चीज़ ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी भाग रहा है। तो छोटा कैलकुलेटर बड़ा में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में चेंज हो गया, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर अब कुछ और चीज़ में चेंज हो गया। तो कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेशन से आया है, राइट? कैलकुलेटर का लिटरल मीनिंग ही कैलकुलेशंस होता है। तो अगर हम कंप्यूट का बात करें, वो भी कैलकुलेट है, तो कंप्यूट भी कैलकुलेट है, कैलकुलेटर भी कैलकुलेट है। इसका मतलब यही हुआ कि कंप्यूट और कंप्यूटर जो है वो एक बहुत बड़ा वास्ट लेवल होगा, बहुत बड़ा चीज़ होगा जो आज के दुनिया में इतना प्रचलित है। तो हम लोग अभी तक क्या बात किए? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरा हम लोगों ने बात किया कंप्यूटर केम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट। आप लोग ये दोनों नोट्स में लिखे होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो रियल डेफिनेशन है उस पर बात करते हैं, राइट? क्योंकि अभी तक हम लोग जितना जाने हैं वो हो गया एक थ्योरेटिकल, एक बुक में जो है वो लिखा हुआ वो डेफिनेशन। द रियल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज, आप लोग लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ मशीन, राइट डाउन इन द नोट्स, computer is a machine which handle data. Computer is a machine which handle data. It stores, send, receive, process, analyze and synthesis the data and कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छा, ये यही डिफिनेशन से, और इसमें इतने चीज़ समझने वाले हैं कि यही चीज़ आप किसी से पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये एक रियल डेफिनेशन है कंप्यूटर का। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे बताया कि कंप्यूटर इज ए मशीन। अब उसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिवाइस इज ए मशीन एक्चुअली। सो कंप्यूटर इज ए मशीन विच हैंडल डेटा। बेसिकली आप इस टोटल डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे अपने नोट्स में, तो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? डेटा पे। डेटा पे फोकस कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं हम लोग? इस पे स्टोर कर रहा है, सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। इस सभी चीज़ का अपना अपना मीनिंग है। कंप्यूटर का ये काम है। मैंने डेटा, वो क्या करता है, डेटा इकट्ठा किया, उसको डेटा मिला, कंप्यूटर हैंडल द डेटा, कंप्यूटर ने डेटा को हैंडल किया। लेकिन उसके बाद अंदर में जो उसका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या है? स्टोरिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, दिस ऑल थिंग्स द कंप्यूटर इज डूइंग। एंड फाइनली हमको जो आउटपुट देता है वो इट इज कन्वर्टिंग इट टू द इंफॉर्मेशन। तो अभी ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक एक चीज़ पे हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ डेटा। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ समझना है? बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा, फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ these all things: store, send, receive, process, analyze and synthesis. These all are called the processing part of computer. And the last thing we have to understand is what in information. अगर आप ये तीन चीज़ को अच्छे से समझ गए तब आपको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कंप्यूटर का पूरा दुनिया इतना ही फंक्शन में है। और यही इतना छोटा चीज़, अगर आपको ये छोटा लग रहा होगा डेटा का डेफिनेशन और प्रोसेस और इंफॉर्मेशन, तो आपको समझना होगा कि अभी तक भी कंप्यूटर
ग्रो कर रहा है, स्टॉप नहीं हुआ, इसका मतलब इसका लेवल बहुत वास्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखिएगा डेटा DATA, फिर उसके बाद हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं जो डेटा, फिर फाइन डेटा एंड देन डेटा इज कन्वर्टिंग टू द इंफॉर्मेशन, लिखिएगा डेटा, फिर एक एरो मार्क मार के उस साइड में लिखिएगा इंफॉर्मेशन, और एरो मार्क के ऊपर में लिखिएगा प्रोसेस। आपको चिंता नहीं करना है, ये चीज़ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बस अभी आप लिखिए, और अगर प्रॉब्लम हुआ, कुछ गलत हुआ, तो आपको नोट्स हम भेजेंगे, उसमें आप क्लियर कर लीजिएगा। तो डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ पे हम लोग पहले डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। और जब हम प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तभी हम आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर, सेंड, रिसीव, एनालाइज, दीज ऑल थिंग्स, फाइन। सो व्हाट इज डेटा? First question is, what is data? The main and most important point which you need to understand from the computer perspective is data, process, information. So first point is data. What is data? देखिए, हम बहुत छोटा एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आप रिलेट कीजिएगा। हम बोलते हैं कि आपके घर में अभी आटा होगा। आप लोग आटा से क्या बनाते हैं? बहुत सारी चीज़ बनता है। हम फाइनली एक बात करें, रोटी बनता है। आटा घर में है, रोटी बन गया। अगर हम आपको बोले कि हम आपको आटा दे रहे हैं, रोटी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? आटा चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, तवा चाहिए। सो दिस ऑल थिंग्स इज नीडेड। फिर उसको हम गूँथेंगे, फिर उसको हम तवा पे डालेंगे, फिर हमको रोटी मिल जाएगा। तो ये जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं, इसमें तीनों चीज़ हम डिफाइन कर दिए। तो अगर हम बोले आटा, अगर बस हम आपको आटा दे दिए और कुछ भी नहीं दिए, क्या उससे चपाती बन पाएगा? नहीं। अगर हम आटा और पानी दिए, क्या उससे बन पाएगा? नहीं। अगर हम आटा प्लस आपको पानी दिए प्लस आपको गैस दिए लेकिन तवा नहीं दिए, क्या बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम आपको जो जो कंटेंट दिए, उस कंटेंट को आप रखे हैं, लेकिन आपके पास अगर पूरा कंटेंट नहीं है, जो जो चीज़ चाहिए वो कंटेंट नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव ऑल द एसेंशियल आइटम्स टू प्रिपेयर समथिंग, then you will not be able to prepare anything, right? You will just keep it here, but you will not able to make chapati from that, correct? So that means these are the raw materials to make the chapati. What is the raw materials? raw material को हम लोग बोलते हैं कच्चा माल। ऐसे जब हम लोग आप पढ़ेंगे दूसरा सब्जेक्ट, कच्चा माल बोलते हैं। तो ऐसा चीज़ जिसको हमको यूज़ करना है फाइनल कुछ चीज़ बनाने के लिए, लेकिन बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो आपको सब इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास, तो आपको ये बन नहीं पाएगा। तो हम अगर डेटा के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो यहाँ पे मेरे लिए डेटा क्या हुआ? आटा, पानी, गैस, तवा, ये हुआ मेरा डेटा। और अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, हम प्रोसेसिंग पे बहुत डिटेल, बहुत अच्छा से प्रोसेसिंग बताएंगे, क्योंकि उसका बहुत ही वास्ट चीज़ है। लेकिन प्रोसेसिंग पे अगर हम बात करेंगे तो हम लोग प्रोसेस मतलब क्या हुआ? आटा का गूँथना, तवा पे डालना, एंड तवा पे जो प्रोसेस चल रहा है, आपको उल्टाना, फुलाना, ये सभी जो काम किए हम लोग, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और जब आपको बन के निकला चपाती, सो दिस चपाती इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। देखिए, आपके रियल लाइफ से हम बात कर रहे हैं, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है क्या? जो हम लोग को रॉ मटेरियल्स मिला, डेटा, डेटा जो मिला वो है आटा, आपका पानी, तावा, आपका गैस, और उसको जलाने के लिए जो भी है, ये हो गया रॉ मटेरियल्स, दीज आर कॉल्ड डेटा। हम लोग जो प्रोसेस के बीच में आटा गूँथे, तवा पे डाले,
उसको उल्टाए फुलाए, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस, और जब फाइनली बन के जब हम निकाल दिए साइड में रख दिए, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फाइन। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि डेटा का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो जो पूरा डिफाइंड नहीं है, एक प्रोसेस में नहीं है, आपके पास बस रख दिया गया है, कोई सीरीज में नहीं है, बस रख दिया गया है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो आप अच्छे से समझेंगे। मेरे क्लास में मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं। मैंने एक पहला स्टूडेंट से पूछा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। वो उठा और मुझे बोल रहा है कि सर मेरा नाम एक्स हुआ, मेरा पापा का नाम हुआ, मेरी मम्मी का नाम जेड हुआ, मैं यहाँ गई थी, मैं मेरा यहाँ इंटरेस्ट है, मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं घूमने में इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, कुछ भी 50 इन्फॉर्मेशन ये दे दिया। दूसरा स्टूडेंट से हम पूछे, और ये जो 50, पहला स्टूडेंट जो मुझे 50 डिटेल दिया, मैंने कॉपी पे लिख लिया। दूसरा स्टूडेंट से हम पूछे तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बोला कि मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, मुझे ये खेलना पसंद है। तो ये भी 50 इन्फॉर्मेशन बोला, एक मान लेते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बोला। बट तुम जो बोले, पहला स्टूडेंट जो बोला और दूसरा जो बोला, दोनों में सीरीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बोला कि मेरा नाम एक्स है, मेरे मम्मी का नाम, फिर मेरे पापा का नाम, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा स्टूडेंट पहले बोलेगा मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी का नाम ये है। वो बोल सकता है मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है। इसका मतलब सीरीज चेंज हो गया। तो आपने 50 इन्फॉर्मेशन जो दिया वो आपका अपना जो भी हैबिट है, जो भी आपको पसंद आता है उसके बारे में बोला। उन्होंने 50 बात जो बोला वो दूसरे फील्ड से बात करे, हो सकता है पॉलिटिक्स के बारे में बोला होगा, हो सकता है गेम्स के बारे में बोला होगा। हम तीसरे बच्चे से पूछे तो उन्होंने भी अपना 50 इन्फॉर्मेशन दिया। हम तीनों बच्चे का नोट, चारों पांचों जितने भी बच्चे हैं सबसे पूछे, मान लेते हैं 5 ही एग्जाम्पल लेते हैं, पांचों बच्चे का हम अपने कॉपी पे लिख लिए। अब हम 5 बच्चे का, पहली बात आप बोले, हम नोट डाउन किए, टाइम कंज्यूमिंग पहले समझना है कि आपने जैसे जैसे बोला मैंने लिख लिया, दूसरा बोला लिख लिया, तीसरा लिख लिया। अभी इतना चीज़ को जब हम लिखे, क्या मुझे कोई सीरीज में है? कुछ भी सीरीज में नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि सर कोलकाता जाने वाले या कोलकाता देखने घूमे हुए कौन कौन से बच्चे हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ, मुझे कोई सीरीज ही नहीं है। मुझे सबका डेटा समझना होगा, कौन क्या बोला है, कौन क्या बोला है। उसके बाद से हम ढूंढ करके तब बताएंगे, अच्छा सेकेंड स्टूडेंट और फोर्थ स्टूडेंट बोला कि मैंने कलकत्ता घूमा है, इस तरह से। या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्रिकेट में किस किस को इंटरेस्ट है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा। आप तो पांचों बच्चे बोले, अगर अभी हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस मेरे पास 5 ही बच्चे तब बात कर रहे हैं, पांचों बच्चे बोले तो मुझे ढूंढना होगा कि किस में लिखा हुआ है कि क्रिकेट में इंटरेस्टेड, फिर हम बोलेंगे। तो अगर आप समझिए कि आपने मुझे कुछ दिया और आप मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप मुझसे कुछ पूछ रहे, इतना आसान मुझे हो नहीं रहा है, मुझे बहुत ढूंढना पड़ रहा है। बस ओनली 50 चीज़ आप बोले हैं तब ये प्रॉब्लम है। अगर आपको बोला जाता है कि आप अपने बारे में 100 चीज़ बोलिए, वो भी बच्चा को, सेकंड को ही बोला जाता है आप 100 चीज़ बोलिए, सभी को, पांचों को बोला जाता है 100 चीज़ बोलिए, तो फिर तो हम नहीं बता पाते। आप हमको 4 दिन से 5 दिन लगता है आपके लोगों को डाटा को फिल्टर करने में, इकट्ठा करने में, एक जगह पे सीरीज में, टेबल में बनाने में। आप समझ रहे हैं कि आप लोगों ने, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जो मुझे कुछ बोला, दिस आर कॉल्ड डेटा। आप लोगों ने जो मुझे बताया, दिस आर कॉल्ड डेटा, बिकॉज द डेटा इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। डेटा इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट। ये हम बहुत छोटा एग्जांपल्स ले रहे हैं। अगर मेरे पास 5 बच्चों की जगह 100 बच्चे होता, और अगर हर एक बच्चा अपने बारे में 1,000 इन्फॉर्मेशन देने लगे, तो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर एक इंसान अगर इतना चीज़ बोल दिए, मैंने लिख लिया, फिर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, मैं ऐसे आसानी से नहीं बता सकता। सर जिस ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जिसके पापा जी का नाम पार्टिकुलर ये है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो दिया वो रॉ मटेरियल मुझे दिया,
आपने जो दिया वो एक रैंडम डेटा दे दिया, रैंडम डेटा, कोई भी सीरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन हमारा ड्यूटी बन गया अब कि हम इसको पूरा सही से फिल्टर करके एक प्रॉपर सेट बनाएं, जिस सेट में लोग देखते ही हर एक क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दें। सो डेटा और इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस हुआ। आपने जो दिया वो डेटा था, और मैं जो मुझे पूछ रहा है, तो मैंने जो एक्सेल शीट बना के रखा हुआ है, मैं एक ऐसा डिटेल टेबल तैयार करके रखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन हुआ। और बीच में जो हम इतना मेहनत करेंगे आपके डेटा को सेग्रीगेट करना, आपके डेटा को सही से लेना, फिर इसको फिल्टर करना, वॉट एवर द थिंग्स आई विल बी गोइंग टू डू इन ऑल दिस डेटा, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू वर्क ऑन योर डेटा, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। तो अभी हम मैनुअल बात कर रहे हैं, मैनुअल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम खुद से करेंगे एज ए पर्सन, एज ए इंसान। बट यू कैन ईजली से, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इस तरह के चीज़ों में गलतियां होने का चांस 99% हो जाएगा। अगर हमारे पास बस 5 बच्चे हैं फिर भी हम गलती करना शुरू कर देंगे। और गलती, पहली बात गलती होगी, दूसरी बात है क्या कि हम लोग टाइम बहुत ही ज़्यादा लेंगे। अगर 100 बच्चे दे दिया है तो मैं तो बोलूँगा 10 दिन के बाद मैं आपको ये इसका प्रॉपर रिपोर्ट दूंगा, प्रॉपर तैयारी करके, अगर मैनुअली बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि डेटा, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बस डेटा पे, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग पे हम बात करेंगे, बस डेटा पे बात कर रहे थे। तो डेटा इज अ रॉ मटेरियल, ओके, डेटा इज अ रॉ मटेरियल फॉर द कंप्यूटर। सो if you will use that raw material, finally computer will do some processing on that. What is that processing? बहुत अच्छा है वो, उस पर आप समझेंगे प्रोसेसिंग तो आपको ऑनलाइन प्रोसेसिंग, बैंक से ट्रांजेक्शन कैसे होता है, बहुत कुछ आपको उसी चीज़ में समझ में आएगा। तो कंप्यूटर इज टेकिंग द डेटा एज ए रॉ मटेरियल, कंप्यूटर इज डूइंग द प्रोसेसिंग। अभी हम यहाँ पर हम जो प्रोसेसिंग कर रहे थे आप लोग के डेटा पे, उसी के जगह पे कौन आ जाएगा? कंप्यूटर आ जाएगा। एंड इट इज गिविंग अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। फाइन। तो अगर हम ले रहे थे 10 दिन, कंप्यूटर लेगा 2 मिनट, 1 मिनट प्रोसेसिंग करने में। सो दैट इज द डिफरेंस। सो आज का जितना हम लोग देखें, अभी तक जितना चीज़ हम पढ़े, हम रिकैप कर देते हैं आज का सेशन के लिए, क्योंकि आज हम लंबा सेशन नहीं लेने जा रहे हैं। कल भी आपको हम यहाँ से शुरू करेंगे फिर से। बट द थिंग इज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे इज, फर्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर, हम लोग अभी वहीं पे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। उसमें पहला चीज़ मैंने देखा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा डिवाइस का मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता क्या है, और फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग देखें डिवाइस इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर क्या मीनिंग है। फिर हम लोग कंप्यूटर का दूसरा डेफिनेशन देखें, जिसमें है कंप्यूटर केम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट और कैलकुलेटर क्या होता है। कैलकुलेटर में फिर हम लोगों ने देखा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स क्या होता है, नॉर्मल कैलकुलेटर्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने थर्ड डेफिनेशन पढ़ा, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को देखे कि कंप्यूटर का मेन डेफिनेशन, जो एक्चुअल डेफिनेशन था, ये था कंप्यूटर किस चीज़ पे काम करता है, कंप्यूटर के लिए मेन कौन सा कंटेंट चाहिए, डेटा। कंप्यूटर इज हैंडलिंग द डेटा, इट इज सेंडिंग, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, synthesizing. They are doing, computer is doing all these operations over the data, and finally what it is doing, it is converting this data into information. So that is called a computer. This is the meaning of computer. So अभी तक हम लोग फिर डेटा का डेफिनेशन देखे। डेटा के डेफिनेशन में, क्योंकि इसको समझना है, अगर आज आप डेटा का मीनिंग समझ पाएंगे तो आप अगर किसी से भी पूछेंगे डू यू नो कंप्यूटर, बोलेगा हाँ, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डेटा, व्हाट इज डेटा। आप लोग 99% लोगों को गलत आंसर देते देखते हैं।
आप लोग आसपास में टेस्ट कीजिएगा इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में हम लोग डेटा पे डिटेल चर्चा किए हैं। डेटा का मतलब क्या बोले, इट इज़ अ रॉ मटेरियल ऑफ ए कंप्यूटर। और रॉ मटेरियल का मतलब क्या बोले कि जैसे हम लोग बोले थे कि जो अगर हमको रोटी बनाना है तो मेरे लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन सा होगा, आटा होगा, पानी होगा, गैस होगा, तवा होगा, दीज आर द रॉ मटेरियल्स। तो अगर हम कंप्यूटर के डेटा के बारे में बात करेंगे तो मेरा रॉ मटेरियल्स का मतलब हुआ कि हमारे पास एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड, हमारे पास जो डेटा मिला जस्ट नॉर्मली जो कुछ भी बोल दिया गया हम रख लिए, हम नोट डाउन कर लिए, कोई सीरीज में डेटा नहीं है, कोई सीक्वेंस में डेटा नहीं है, राइट। तो हम लोग डेटा पे डिटेल डिस्कशन किए हैं अभी। और हम लोग क्या नेक्स्ट है, डेटा के बाद इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस। तो हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पे भी देखें, थोड़ा प्रोसेस पे भी देखें, बट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग इतने पॉइंट अभी तक देख लिए। अभी तक जितने भी चीज़ पढ़ाए हैं उसका आपको नोट्स भेज दिया जाएगा, आप लोग नोट्स से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, जितना भी हो सके 2-3 बार देखने के बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको समझें। और उसके बाद हम लोग को जो भी आप लोग को जो भी क्वेश्चंस आता है, यहाँ जो भी कन्फ्यूज़न है, आप लोग अपने नोट पे लिख के मुझे बताइएगा। आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। आई एम रेडी टू फिक्स ऑल दीज क्वेश्चंस, आई एम हियर टू हेल्प यू इन ऑल दीज सिनेरियोज। एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग पे बात ज़रूर करेंगे। उसके अलावा हम आप लोग को, क्योंकि लंबा सेशन में 1 घंटा का कंप्यूटर क्लास लेने में हो सकता है आप बोर हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा सोचे हैं कि नॉट ओनली बिकॉज आई टोल्ड लाइक दिस होल कंप्यूटर कोर्सेस इज नॉट ओनली द कंप्यूटर क्लासेस, यू विल गेट सम एक्स्ट्रा नॉलेज नो। सो हम लोग हम सोचे हैं कि आपको 40 मिनट्स कंप्यूटर क्लास लेंगे और 20 मिनट्स जो है आपको नया इन्फॉर्मेशन, यूपीआई पेमेंट, हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। सो हम आपको इस सब पे भी एक वास्ट नॉलेज देंगे। जितना लोग यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, उसका सिक्योरिटी क्या होता है, पैसा कहाँ जाता है, क्या जाता है, हम उस सब पे भी बात करेंगे। दीज आर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, डू नॉट टेक इट एज कंप्यूटर नॉलेज, बट दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज दैट इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड। बट वो हम लोग अभी नहीं बात करेंगे, कल भी नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट वीकेंड से जो हम लोग सेशन लेंगे उस सेशन में हम उस पर बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। आप लोग सही से देखिए और हमको क्वेश्चन भेजिएगा। थैंक यू।